Welcome to all the students here in science topic. Next disease AIDS. Transmission, mode of infection, symptoms and prevention. See, in your textbook page number 9, the information is given. So very first we'll see about AIDS. AIDS, AIDS. AIDS. Its full form is A for acquired, I for immuno, D for deficiency, and S for syndrome. So acquired immunodeficiency syndrome, that is called AIDS. And this AIDS is spread by the virus that is called HIV virus. H means human, I mean immunodeficiency and virus. So this virus spread the disease AIDS. Means this virus attacks in the blood cells and to decrease the immunity power of human. There is no cure, but it can be treated with the help of medicines. Now let us study how it is transmitted. The most common methods of transmission of HIV are: first, unprotected sex with an infected partner, means the woman having AIDS disease and a healthy person has this unprotected sex, then the healthy person will have AIDS disease. Second, sharing needles with the infected person. If same needle is used for healthy person, if doctor use this type of needle which is before used for AIDS person and again it is used for healthy person, then from the blood only the viruses from affected person will enters into the healthy person. Third, transmission from infected mother to their baby, its fetus. Means if a woman having AIDS disease and if she is pregnant, after the birth of the baby, there is a possibility of that baby will have a same disease of AIDS. Then infected from blood products. Yes, blood donation. If a person donating blood to healthy person without any diagnosis and if he is having a AIDS disease, then through the blood only the AIDS disease can be transmitted to healthy person's body. So these are the various ways of transmission of AIDS. Blades also, if a same razor is used in the barber shop, then it can be transmitted again. So next we will see what are the symptoms of AIDS. Symptoms. HIV infection, how? There are main infection that occurs in our human body. Lymph node first, that is swelling of throat, our throat get swollen. रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी ऊपर इसकी इफेक्ट होता है, उसमें है ड्राई कफ, निमोनिया और सोर थ्रोट, गला सूख जाना, निमोनिया जैसे बीमारी होना, ड्राई कफ होना. यस. देन पेनिंग इन द मसल्स, हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें पेनिंग बहुत होता है, थकवा, यस, थकावट बहुत आती है. देन जॉइंट द पेन्स, जहाँ पे जॉइंट्स हैं हमारे जॉइंट्स वो बहुत पेनिंग होते हैं. देन हेडेकी रिलेटेड, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाना पेशेंट का. दिस इज स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, रैशेस, स्किन के ऊपर रैशेज होते हैं. यस. और टेम्परेचर बॉडी में आता है, फीवर आता है, नाइट स्वीट्स होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसका इफेक्ट होता है, उसमें है नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, उल्टियाँ होना वगैरह, डायरिया का प्रॉब्लम्स.
नेल्स, ये जो नेल्स होते हैं ये थिक हो जाते हैं, थिकनिंग एंड कर्विंग, यस, थिक होते हैं और ऐसे बेंड होते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ द वेट लॉस, यस, यानी कि जिस आदमी को एड्स है उसका वेट बहुत तरीके से ज़्यादा कम होता है, यानी कि हर महीने में उसका वेट कम होना शुरू होता है, यानी उसका वेट अचानक 10 किलो से ज़्यादा कम हो जाना, ये उसका बहुत बड़ा सिम्टम्स है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ HIV। नाउ just concentrate on this paragraph given in your textbook. Always remember, AIDS does not occur due to touching to and sharing the food with the HIV infected person. एड्स ऐसी बीमारी है जैसे कि आजकल लोग देखते हैं कोरोना बीमारी कॉन्टैक्ट से होता है, यस, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम या हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो एड्स में वैसा कुछ नहीं है। एड्स वायरल डिसीज़ है, लेकिन ये एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने से, उसके साथ खाना खाने से या उसके कपड़े का इस्तेमाल करने से या उसके साथ खेलने से बैठने से ये बीमारी नहीं फैलता, यस। और बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट, या हमने उसका, अगर आप नर्स है, कंपाउंडर है, डॉक्टर है, तो उसका डायग्नोसिस, उसका टेस्टिंग या उसका चेकिंग करने से ये एड्स नहीं फैल पाता। और बिहेवियर विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल, इसीलिए जिस आदमी को या जिस पर्सन को HIV एड्स है उसके साथ हमारा बिहेवियर नॉर्मल होना, जैसे नॉर्मल पर्सन के साथ हम बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, बैठते उठते, वैसा एड्स पर्सन के साथ होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, डू यू नो HIV was first reported in an African species of monkeys. According to the National AIDS Control Program and UNAIDS, 80 to 80% HIV infection in India occur through unsafe sexual contact. So India में 80 से लेकर 85% एड्स फैलने का कारण है unsafe sexual contact. Yes. Now the last topic, that is how AIDS can be prevented. सो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यस, प्रिवेंशन ऑफ HIV और एड्स। देयर इज़ अ नो वैक्सीन, यस, देयर इज़ अ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन एंड नो क्योर फॉर एड्स। एड्स के ऊपर आज तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंशन इंक्लूड्स एजुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट HIV एंड अवॉइडिंग any behavior that allows HIV infected fluids, blood, semen, vaginal secretions and breast milk into your baby, उससे ये मिलता है। HIV नेगेटिव या how to prevent this AIDS, see one by one, know the HIV status of any sexual partner, yes, so हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यूज़ अ न्यू लैटेक्स और पॉलीयूरेथेन कंडोम्स ड्यूरिंग ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कंसिडर मेल सर्कमसिजन। यूज़ अ क्लीन नीडल्स, यस, फ्रेश नीडल का इस्तेमाल करना है। बी कॉशियस अबाउट ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड डोनेट अगर आपको लेना है या ब्लड डोनेट करना है या रिसीव लेना है, रिसीविंग द ब्लड, तो हमें एग्जामिनेशन उसका करना है, डायग्नोसिस करना है। गेट रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्लड का टेस्ट रेगुलर स्क्रीनिंग करना है, ताकि अगर ये एड्स बीमारी अगर होती है तो उसके ऊपर अपन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिकल्स भी है, उसका इस्तेमाल करके अपना लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एड्स डिसीज। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द एड्स in your notebook. Thank you.